پاک بھارت جنگ کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی. بھارت جو بھی منصوبہ بندی کرتا تھا ہمیں بر وقت معلوم ہو جاتا تھا. ہم ریڈار میں دیکھ چکے تھے کہ ہمارے ایئر فورس نے 5 بھارتی طیارے گرائے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھارتی جہاز گرانے کی ساری تفصیلات بتا دیں. کہا کہ مار گرائے جانے والے 6 بھارتی طیاروں کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا بھارت چمکتی مرسیڈیز اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ٹرک ہے. دونوں گاڑیوں کے تصادم ہونے پر اندازہ لگا لیں نقصان کس کا زیادہ ہوگا. بھارت نے جو میزائل فائر کیے ایک بھی میزائل ہماری بیس پر نہیں گر سکا. بھارت کی اور بہت سی چیزیں ہمارے ٹارگٹ میں تھیں, بآسانی نشانہ بنا سکتے تھے. بھارت نے جن مقامات کو نشانہ بنایا پہلے وہ اسے ہضم کر لیں. KPK میں سیلاب کے بعد ہر طرف تباہی کی داستان. بنیر میں سب کچھ ملیامت, گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گیا, گھر ملبے کا ڈھیر, درجنوں خاندان اجڑ گئے, سڑکیں اور کئی پل بہہ گئے. قادر نگر میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 84 افراد جاں بحق. ریسکیو آپریشن کے دوران مزید 7 افراد کی لاشیں نکالی گئیں. صرف بنیر میں 208 افراد لقمۂ اجل بنے. ملبے سے ملنے والی لاشیں گاؤں گاؤں پہنچائی جا رہی ہیں. اسکولز, اسپتال, پولیس اسٹیشنز بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئے. پیر بابا کا 10 کلومیٹر تک کا علاقہ تہس نہس ہو گیا. شادی کی تیاری میں مصروف بونیر کے خاندان کی خوشیاں بھی سیلاب کی نظر. ایک ہی خاندان کے 21 افراد کی زندگیوں کا چراغ گل ہو گیا. اسلام آباد ایئرپورٹ سے واپس گھر آنے والے شخص کا پورا خاندان پانی میں بہہ گیا. متاثرہ شخص نے بتایا بیٹے کو ایئرپورٹ لینے گیا تھا, واپس بونیر پہنچا تو اطلاع ملی گھر پانی میں بہہ چکا ہے. گھر میں 40 افراد تھے جو سب سیلاب میں بہہ گئے. KPK میں بادل پھٹنے, لینڈ سلائیڈنگ اور بارش کے بعد بربادی کے مناظر. سوات, باجوڑ, بٹگرام, مانسہرہ, شانگلہ اور تورقر شدید متاثر. مالم جبار روڈ کا 400 میٹر حصہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا. منگورہ شہر, تحصیل چار باغت, قوسہ قلعہ, مدین, کبل اور بری کوٹ میں بھی سیلابی صورتحال. کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے اموات کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی. سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ تعمیر کروائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اعلان. کہا وعدہ کرتا ہوں جو نقصان ہوا حکومت ادا کرے گی. سب سے زیادہ نقصان بونیر میں ہوا. کوشش ہے کہ سیلاب کے راستے آنے والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے. مشکل وقت میں مدد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. علی امین گنڈاپور کا سیلاب سے متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ, نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی. شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. صوبائی حکومت کا متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 3 ارب روپے کا اعلان. لواحقین کے لیے 50 کروڑ روپے. وفاقی حکومت کا 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان. فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت پر KPK کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریلیف مشن جاری ہے. بنیر, شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں پاک فوج کے جوان ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں دن رات مصروف عمل. منگورہ میں متاثرہ عوام کو آٹا, چاول, دانے, پینے کا پانی اور دیگر اشیاء خورنوش تقسیم. پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک عوامی خدمت کا مشن جاری رکھا جائے گا. جیسے لائیولیہوڈ یا نارمل پہ آئے گا, ہم اگلے انشاءاللہ تعالیٰ مانسون سے پہلے ان تمام اقدامات کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے اس سال 2025 میں نوٹ کیے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے نقصان کو کم کریں. مانسون کے مزید سپیل آئیں گے, شدت پہلے سے زیادہ ہوگی. چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا. کہا کہ عوام اور متعلقہ ادارے الرٹ رہیں. مانسون بارشوں کا سلسلہ ابھی تھمنے والا نہیں. ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک مانسون کے سپیل باقی رہیں گے. چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے خیبر پختونخوا میں ہونے والے نقصانات کو موسمی تبدیلی کا ایک حصہ قرار دے دیا. بولے بونیر اور باجوڑ میں تباہی بادل پھٹنے کی وجہ سے ہوئی. 2 روز میں 337 لوگ جاں بحق اور 178 زخمی ہوئے. بلائی KPK کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹم بحال. شدید بارش, بادل پھٹنے اور طغیانی کا خدشہ. PDMA اور محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. چند گھنٹے میں مردان, شانگلہ, بنیر, سوات, مانسہرہ, پشاور سمیت دیگر مقامات پر بارش ہو سکتی ہے. PDMA پنجاب نے آج سے 23 اگست تک سیلاب کے خدشے سے متعلق الرٹ جاری کیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 17 سے 23 اگست کے دوران صوبے بھر میں شدید طوفانی بارش کا امکان ہے.
बुनेर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुताल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहानी मुमलिकत का पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में इस मुश्किल घड़ी में हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ की फराहमी की पेशकश की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर मुमलिकत के नाम ताज़ियती खत, कीमती जानों की ज़िया पर दुख और रंज का इजहार। कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याह्या का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। कुवैत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड फ्लेमी का भी इसहाक डार को टेलीफोन। हालिया सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। इसहाक डार का बरतानिया की यकजहती, इमदाद और बहाली की काविशों में मदद की पेशकश का शुक्रिया। इस्लामाबाद और पिंडी में फिर बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मुमकिन शदीद बारिशों के पेश नज़र मारगल्ला हिल्स के ट्रेल और सैदपुर विलेज के अकब का ट्रेल 19 अगस्त तक बंद। पेशावर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में तेज़ बारिश। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कांगड़ में सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की पुरस्कार मौत का मामला हल न हो सका। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाक़े को बज़ाहिर खुदकुशी करार दिया गया। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी के सर में लगी गोली उसके अपने ही लाइसेंस याफ्ता पिस्टल की थी। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक ख़ाबर हुसैन ने 2 बार रेस्टोरेंट का रुख किया। सीसीटीवी फुटेज में वो रेस्टोरेंट के अंदर आते जाते और गाड़ी में बैठे दिखाई दिए। हुक्काम का कहना है कि ख़ाबर हुसैन के इस्तेमाल में 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, एक बरामद हो गया है, दूसरा लापता है। वज़ीर आला सिंध ने सहाफ़ी की पुरस्कार मौत का नोटिस ले लिया। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सूबाई वज़रा, सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों का इज़हार अफसोस। सहाफ़ती तंजीमों का हुकूमत सिंध से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। क्रिप्टो सिफारतकारी से वाशिंगटन में पाकिस्तान की पजीराई, सरमायाकारी के मौके बढ़ गए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली से अमेरिका में पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। भारत पाकिस्तान की पजीराई से नाराज। पाकिस्तान ने क्रिप्टो सिफारतकारी से ट्रंप बिजनेस हलकों में जगह बनाई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मुआहिदा खरबों डॉलर के मादनी वसाइल टोकनाइजेशन के लिए तैयार। मोदी सरकार को एक और धचका, अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया। अमेरिका और भारत के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 5 अदवार मुकम्मल हो चुके। छठे दौर के लिए अमेरिकी वफ़द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी दोबारा बढ़ने का खदशा। हिना रब्बानी खैर कहती हैं, मई में भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर मिसाइल हमले किए। भारत ने दावा किया कि दहशतगर्दी के ढांचे को निशाना बनाया गया। 4 रोज़ा खतरनाक कशीदगी के बाद जंग बंदी हुई। भारत सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के जवाब ने भारतीय अस्करी बालादस्ती का तासुर तोड़ दिया। खित्ते में चीन इस्तेहकाम का जरिया है। एटमी रियासतों का टकराव पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। जुए को वीडियो में प्रमोट करने का मुकदमा। यूट्यूबर साद उर्फ डकी लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मुलजिम डकी बैरून मुल्क फरार की कोशिश में पकड़ा गया। मुलजिम पर ऑनलाइन जुआ खेलने वाली ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। जिला कचहरी लाहौर ने यूट्यूबर डकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का मुलजिम को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। वीडियो क्यों बनाई? शाहीन फोर्स के एहलकार और होटल मुलाजमीन गुत्थम गुत्था। कराची के इलाके लियाकताबाद में शाहीन फोर्स के एहलकार होटल पर खाना लेने गए। होटल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर खाना देने से इनकार किया। होटल मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों ने एक दूसरे पर तशद्दुद किया। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली।
कोहाट के इलाके में की शनोखेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक कोहाट के इलाके खड़ा घड़ी मोहम्मद से बताया जाता है। तांदा डैम में पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे। लोधरा में अवामा एक्सप्रेस को हादसा, इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल। ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। तहकीकाती टीम ने जॉइंट सर्टिफिकेट सीईओ रेलवे को पेश कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन ओवरशूट होने पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई। ड्राइवर ने ट्रेन सैंड हम्प पर चढ़ा दी। ट्रेन ड्राइवर वक्त पर ब्रेक ना लगा पाया, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक, 19 जख्मी हुए। एशिया कप और यूएई में सैमुअल की सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, सलमान अली आखा टीम की क़यादत करेंगे। अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फ़खर समान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत टीम का हिस्सा। मुश्तल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम भी टीम में शामिल। वसीम जूनियर और साहिदादा फरहान भी स्क्वाड का हिस्सा। सैमुअल की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में स्केड्यूल्ड। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में मुनक्किद होगा। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं बाबर आजम के पास मौका है बिग बैश लीग में परफॉर्म करें। टीम T20 में अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम हर खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ जानने के लिए साथ रहें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, ट्रंप ने तफसीलात नहीं बताई। गजा में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। गजाई इमदाद के मतलाशी 21 अफराद भी शामिल। भूख और गजाई किल्लत से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली ड्रोन हमले में पानी लेकर आने वाली बच्ची की शहादत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टेल अवीव में गजा में जंग बंदी और इसराइली यरगमारियों की वापसी के लिए हड़ताल। मुजाहिरीन ने वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड, न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई ममालिक में गजा में कत्लेआम बंद करने के लिए मुजाहिरे किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। जापान गवर्नमेंट के आला अफसरान और सिफारती हुक्काम ने खैर मक़दम किया। जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम में वोटिंग का सिलसिला जारी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से सिखों की बड़ी तादाद वाशिंगटन पहुंची। दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों की गूंज। सिखों ने भारतीय आइन का मुसव्विदा भी नजर आतिश कर दिया। इंडोनेशिया में 6 शिद्दत के ज़िलज़ले से हर चीज़ लरज़ गई। सुलावेसी में शदीद ज़िलज़ले से 29 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 2 की हालत नाजुक। ज़िलज़ले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक ज़िलज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया था। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज में फायरिंग। 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या लाउंज के अंदर किसी झगड़े के बाद पेश आया। पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा हानिया आमिर दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एमा वॉटसन को भी पीछे छोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हसीन तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में हानिया आमिर 6ठे नंबर पर मौजूद। एमा वॉटसन खूबसूरत तरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में 8वें नंबर पर हैं। और मुसलसल 3 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा शबनम की सालगिरह। माजी की मारूफ अदाकारा झरना बासिक अल मारूफ शबनम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। उनकी यादगार फिल्मों में आईना, बंदिश, शमा और परवाना, दर्शन और अंदलीब शामिल हैं।